Okay, so we will start with illustration number 6. From the following particulars, pass journal entries in an integrated system. So integrated system में आपको journal entries pass करना है. So what will be the journal entry for raw material purchase? चलो. I want answer from your side only. फटाफट. Material purchase क्या? What is coming in? Material. That means store account, store ledger control. No? Store ledger control, account debit. Okay. Now what to credit? 80% is on credit. Okay. So 20% is on cash basis. So this should be bifurcated into two parts. One is cash and bank. और क्या आएगा दूसरा? क्रेडिट. क्रेडिट आता है कि क्रेडिट आता है बेटा? क्रेडिटर साइड. क्रेडिटर. करेक्ट. ठीक है. इफ someone's name is mentioned तो आपको उसका नाम मेंशन करना है, अदरवाइज आप क्रेडिटर लिखिए. ट्रेड क्रेडिटर भी लिख सकते हैं और सिर्फ क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके, व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट सब ब्लैंक कर दूंगा पहले. ओके, व्हाट इज द अमाउंट? 11,80,000 is the total amount. It should be bifurcated into two parts. One is 80%. What is 80% of it? Sir, 9,44,000 sir. 80%. चल 9,44,000. बराबर है क्या? और बाकी बचा 2,36,000. ठीक है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं फिर भी. चल, वेरी गुड, करेक्ट है. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. So which entry it is? Material is being issued to production. Work in progress account debit. यही वाली है. Work in progress account debit to material मतलब store. Okay. Work in progress account debit. Debit to store. Store is being issued to production. Amount is 8,90,000. 8,90,000. Okay, this is done. Next is total wages paid. Wages paid की entry pass करना है integrated. Which entry it is? Wages paid. This is the entry. Wages बोला है, direct indirect कुछ नहीं बोला है. Direct. नहीं, wages paid बोला है, बस इतना. So you will use word wages only. ठीक है. तो wages paid की entry क्या होती है? Wages account debit to cash or bank. Correct. And obviously it is direct wages in absence of information, but they will give you information later. Okay, they are just telling you to pass the entry for wages paid. That's it. So now it is for wages paid, because when they ask you to pass the journal entry, they are very particular. They want this entry only. तो आप उसकी तरह ही pass करो. Okay. Then we have wages charged to production. ठीक है, देखो बता दिया है कि कितना wages production में जाएगा. ठीक है, कितना? 3,60,000. So production में जाएगा मतलब wages production में जाएगा. Production का मतलब क्या होता है? Work in progress account debit to wages. Okay, it is 3,60,000. Okay, this is also done. Factory overhead incurred. ये factory overhead paid वाली entry है, ये वाली entry है ना? सिर्फ factory overhead account debit to cash or bank. Factory overhead account debit
Cash. Okay, this is also done. The amount is 3,80,000. Okay, number 6 is factory overhead charge to production. Now factory overhead is being charged to production. Production में जा रहा है. Which entry it is? देखो factory Work in overheads कहाँ पे progress जा रहा है? account. हाँ. Work in progress Debit to. to factory overhead. Amount is 3,20,000. Okay, next is office overhead incurred. अभी office overhead की बात कर रहे हैं. Now this one, first one is for paid. तो paid वाली entry pass करें. Administration overheads account debit to cash or bank account. Overheads to cash and bank. The amount is the amount is 2,20,000. Okay, next is application entry. Office overhead applied to finished goods. So which entry? This ends. Office expenses applied to finished goods. बोलो. Administration overheads account debit to सही है. नहीं बोलो. finished goods account debit to हाँ. administration. कहाँ पे अप्लाई हो रहा था उसको डेबिट करना. कौन सा एक्सपेंसेस? Okay. Is the amount 1,70,000. Okay. Next is selling overheads incurred. अभी selling overhead की बात. तो selling overhead incurred है. तो incurred है तो मतलब यहाँ पर एंट्री होगी. Selling overheads account debit to cash or bank account. Selling and distribution to cash and bank. ये entry है 96,000. Okay, next is selling overhead applied to cost of sales. देखो selling overhead applied to cost of sales. ठीक है. Cost of sales account debit to selling and distribution overhead. Amount is 72,000. Okay, next is finished goods produced. कौन सी entry है ये? Produced. Finished goods produced. कहाँ से निकल के कहाँ पे जा रहा है? Complete होके account finish में. debit to work in progress account. सेम एंट्री ही है. The amount is 10 lakh. Okay. Material loss by fire. This is a loss. ठीक है. तो क्या एंट्री पास करेंगे? चलो चलो बताओ लॉस की एंट्री क्या है?
सर याद तो था अभी। सर डेटर आएगा ना? हाँ सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस सर, change अकाउंट रहता। डेबिट। क्या लॉस है भाई वो? लॉस ऑफ मटेरियल, तो क्या लिखेंगे? स्टोर। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट लॉस बाय फायर। हाँ, इफ यू आर राइटिंग लॉस बाय फायर तो लॉस बाय फायर को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा। याद रखो, तो मैंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दिया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टोर। ठीक है, इसलिए बता दिया है क्योंकि अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। अल्टीमेटली लॉस बाय फायर इज ऑल्सो गोइंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लोजिंग द एंट्रीज आर ऑल्सो सेम। मटेरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मटेरियल्स इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के लिए Work in मटेरियल यूज progress. किया, बिल्डिंग के लिए है तो बिल्डिंग करो। ये आपके लिए न्यू है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्चुअली इंटीग्रेटेड में अपन बिल्डिंग लिख सकते हैं, तो इनको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज डन। This is question number 6. Okay, this is sent to your group. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। This was October 2019. Okay, पहली एंट्री बताइए। परचेज है ना सर, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जितना कैश में है उतना किस में जाएगा? पे करना पड़ेगा तो टू कैश एंड बैंक, और जो 80% जो है क्रेडिटर्स में जाएगा। क्रेडिट में जाएगा। ये हम लोग ने अभी भी देख लिया। सेम है, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन WIP टू स्टोर, वेजेस पेड वेजेस टू कैश एंड बैंक, वेजेस अप्लाइड टू प्रोडक्शन WIP टू वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश एंड बैंक। ठीक है, मटेरियल डैमेज हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू, मटेरियल आपका डैमेज हो गया है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टोर क्योंकि मटेरियल है इसलिए। एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश एंड बैंक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस का क्या है? चलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे कौन सा एक्सपेंसेस है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ऑफिस एंड Office and एडमिनिस्ट्रेशन टू, administration. यस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कैश एंड बैंक। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कौन सी एंट्री है? प्रोड्यूस की एंट्री। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। Yes. Okay. Next is okay. Wages paid, wages applied to factory. Wages factory को apply हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस। Correct. Sales 70% क्रेडिट पे है और 30% कैश पे है। सेल्स किसको सेल्स होता है? डेटर। कौन है डेटर यहाँ पे? कौन है डेटर यहाँ पे? यहाँ पे एलेक्स, यहाँ पे डेटर यूज करना है वर्ड। ठीक है, ध्यान रहे, डेटर यहाँ पे वर्ड यूज करना है। तो डेटर मतलब अरोमा लिमिटेड। ठीक है, डेटर का नाम भी दिया हुआ, अरोमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स है। ठीक है, तो अरोमा लिमिटेड डेबिट कितना होगा? सिर्फ 70% से, क्योंकि क्रेडिटर से 70%, सॉरी हाँ, क्रेडिट पे से 70%। तो एंट्री क्या आएगी इसकी? एक तो डेटर है, डेटर कितने के लिए? 70% के लिए। बाकी कैश पे है तो आपको क्या मिलेगा? कैश एंड बैंक। Cash at bank. हाँ, तो ये क्या है? सेल्स
है ना, तो टू सेल्स। और अल्टीमेटली आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स की एंट्री हम लोग नॉर्मल जैसे फाइनेंस में पास करते थे वैसे ही आपको करना है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये आपकी क्रेडिट सेल की एंट्री है, और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये आपकी कैश की एंट्री, एकदम सेम जैसे बचपन में आप एंट्री पास करते थे। बचपन में एंट्री पास करते थे। बचपन में 11 में बच्चे ही थे ना, तुम लोग बड़े हो गए थे क्या? एलेक्स तू ही बड़ा हुआ रहेगा, बाकी थोड़ा ना लोग बड़े हुए हैं, सब बच्चे हैं, मासूम बच्चे हो। तो सर मैं बड़ा हुआ तो मैं मासूम नहीं हूँ। नहीं मासूमियत चली नहीं जाती है ना टाइम के हिसाब से, अब तेरी कब गई हम लोग को क्या मालूम। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मासूम लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। आए तो है आप जी रहे हो तो अच्छी बात है, आप मासूम आए नहीं। है Okay, okay, look at this question. Generalize the following transaction under integrated system. रॉ मटेरियल परचेज एकदम नॉर्मल एंट्री हो गई, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्ट है मतलब प्रोडक्शन, ठीक है सेम है। वेजेस पेड है, डायरेक्ट है, 70% इनडायरेक्ट है, 30%, तो इसका आपको मालूम है वेजेस पेड की एंट्री पास करना है। और वेजेस मैंने मॉर्निंग में आपको एंट्री पास करके बताया था इसकी। जब जनरल एंट्री पूछेगा इंटीग्रेटेड में तो ध्यान देना 30% जो है वो डायरेक्ट आप भेज दो ना, किसको, फैक्ट्री को। जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री में जाने दो आप, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ना दिया नहीं होता था डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट वेजेस कितना चार्ज हुआ है प्रोडक्शन को वो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और देखो वो आपका 30 और 70% का टैली जो है ना बराबर नहीं करेगा, तो आप इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट वेजेस। पहली बार तो डायरेक्ट वेजेस पेड दिया है इधर पे, और यहाँ पे दिया इनडायरेक्ट, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है पहली बार। इट शुड बी वेजेस पेड, ठीक है, वेजेस पेड, और 30% क्या है आपका इनडायरेक्ट है, और 70% जो है वो डायरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाना चाहिए एग्जाम में। अगर वो डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन में ही जाएगा, करेक्ट है। तो इसीलिए उसको डायरेक्ट वेजेस बोला जाता है, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, तो इसके एंट्री कैसे पास करना है आपको, मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट वेजेस, और एल्स आप लिख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते हैं। फिलहाल आप डायरेक्ट वेजेस लिखो, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कैश इन मैन्युअल। इस तरह से आप एंट्री पास करोगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एंट्री जो है एप्लीकेशन के नीचे दिया है, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड टू प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन को अप्लाई हुआ है तो वर्किंग प्रोग्रेस टू डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। सर हम लोग ये वाला अमाउंट नहीं यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है, मत करना गलती से। या तो आप इधर पे वेजेस लिखो या डायरेक्ट वेजेस लिखो, यहाँ पे भी आप वेजेस या डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हैं। जैसे हमने बाइफरकेट किया डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए दूसरी एंट्री दी है आपको 9000 वाली, ठीक है। ये है डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड टू प्रोडक्शन की एंट्री, और ये पेड की एंट्री, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट वेजेस का नाम लिखो, इनडायरेक्ट वेजेस है तो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखो। इससे पहले भी हम लोग ने एंट्री किया है, लेकिन हम लोग तभी के तभी क्या करते थे, 30% डायरेक्ट अपन ट्रांसफर करते थे, WI मतलब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रांसफर करते थे, और 70% WIP को करते थे, ठीक है। आप वैसे कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपका टैली नहीं होगा, और डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन ये जो सेकेंड एंट्री है ये आपकी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट वेजेस कितना प्रोडक्शन को अप्लाई हो रहा है, ये दिया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो ध्यान रहना चाहिए। और ऊपर 30% इनडायरेक्ट बोला है, 70% डायरेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि 70% पूरा प्रोडक्शन को अभी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट अभी अप्लाई हो, कुछ पार्ट बाद में अप्लाई हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बट आई थिंक आप 70% लेंगे तो वैसे भी 9000 ही आएगा, देखो, लेकिन 15,000 का 70%,
नहीं, है ना, टैली नहीं होगा आपका। तो ध्यान देना है, ये आपका जब पेड की एंट्री है, वेजेस पेड, तो वेजेस पेड के टाइम पे जब आपको डायरेक्ट वेजेस है तो आप लिखो डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस है तो आप क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस करके कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल करके कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हर एक फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड से लिखते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ गया होगा। और वेजेस पेड, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन मतलब WIP टू वेजेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इज सिंपल, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन इज सिंपल, WIP टू मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश एंड बैंक होगा। फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट दिया है तो ये हम लोग ने सुबह में भी देखा था, ये फिनिश गुड्स वाली एंट्री है, फिनिश गुड्स टू WIP वाली। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करने वाले हैं, सेल्स के लिए एंट्री पास करेंगे, डेटर टू सेल्स। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर रहेगा तो कैश टू डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर रहेगा तो क्रेडिटर टू कैश। ये भी हम लोगों ने मॉर्निंग में देख लिया एग्जैक्टली यही। देखो 2 ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा। ठीक है, and they have asked mainly they will ask journal entry in integrated, क्योंकि इसका नॉन मतलब लेजर बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसका लेजर। तो दे मेनली आस्क जर्नल एंट्री, और जो जर्नल एंट्री आपको दिख रही है सामने वही पास करनी है, इसके अलावा कुछ पास नहीं करना। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी इन एग्जाम। अगर आप लेजर पोस्टिंग के लिए जाएंगे, नॉन इंटीग्रेटेड में रहता है लेजर पोस्टिंग भी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तुमको पता है तुम्हारा क्वेश्चन सबसे पहला यही था कि सर इतने सारे लेजर बनाने हैं क्या। ठीक है, सो इतने सारे लेजर्स बनते हैं बेटा, नॉन इंटीग्रेटेड में आते हैं काफी सारे क्वेश्चन, लेजर से ही आते हैं नॉन इंटीग्रेटेड में। और इंटीग्रेटेड में ज्यादातर जर्नल एंट्री होती है, क्योंकि दे विल आस्क, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दे विल आस्क डिफरेंट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके मोर और लेस सेम ही होते हैं। यहाँ पे उन्होंने लेजर पूछा है, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम एंट्रीज हैं, आप ये भी देख लो। देखो कुछ चीज नहीं समझ में आती है क्या, रीड करो। कुछ चीज नहीं समझ में आती है क्या आपको, बताओ मुझे। तो क्या है सर, फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एंड ऑफ द मंथ? एकदम एंड में पहुंच भी गया तू, कुछ नहीं करना, उसकी नहीं जगह एंट्री नहीं पास हो, वो क्लोजिंग बैलेंस हो। सर ये नॉन प्रोडक्टिविटी टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। बाप रे बाप, नॉन प्रोडक्टिव मतलब आइडल टाइम। ठीक है, लॉस, तो लॉस के लिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझा समझा सर, समझा। सर, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैच है, बैच क्या है सर? अरे बाप रे, बैचेस पूछ रहे हो, किसको बोलते हैं, चलो कोई तो बताएगा। बैचेस बताया था मैंने आपको किसको बोलते हैं, सुबह बताए थे सर आप। प्रोडक्शन। हाँ सबको पता है, WIP. प्रोडक्शन, हाँ WIP को बोलते हैं, सुना। ठीक है, बैचेस, जॉब, प्रोडक्शन। ठीक है, ये किसके लिए यूज होते हैं, आपके WIP के लिए यूज होते हैं, समझा क्या। बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, ये सब रिलेटेड टू आपके जॉब से और रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। ठीक है, और देखने क्वेश्चन आपको, क्रेडिट क्या है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव देखे तो ऐसा बड़ा बहुत बड़ी बात है, देख लो भैया। ये तो है क्रेडिट परचेज है, तो स्टोर टू क्रेडिटर, वेजेस पेड है, अनप्रोडक्टिव वेजेस है और प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस है और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फिर मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, वर्क्स ओवरहेड इनकर्ड, फिनिश गुड्स, एवरीथिंग इज सेम ओनली ना, अभी इससे रिपीटेड है, सारी चीजें आपके लिए सेम ही रहेंगी। देखो ये क्वेश्चन देखो, इज देयर एनीथिंग स्ट्रेंज, कुछ स्ट्रेंज दिखता है, कुछ अलग दिखता है तो बताओ। And I have forwarded all these question to you, although आपके पास आंसर्स हैं,
आंसर्स हैं आपके पास इसके, बट फिर भी पहले खुद से करो, उसके बाद आंसर्स की तरफ देखो। ये सारे क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। आज जो पीडीएफ भेजा है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, कुछ है सर इसमें? सेल्स क्रेडिट दिया है तो फिर वो क्रेडिटर आएगा ना सर? बेटा डेटर आएगा ना, सेल्स क्रेडिट पे है। सेल्स कैश पे हो सकता है और क्रेडिट पे हो सकता है ना, तो सेल्स ऑन क्रेडिट ऐसा है वो, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटर लिखना है या कैश लिखना है वो लोग देते हैं, जबकि नॉन इंटीग्रेटेड में आपने देखा होगा कभी ऐसा यूज नहीं होता। मटेरियल परचेज फ्रॉम मीतू, स्टोर अकाउंट डेबिट टू मीतू, ठीक है, क्रेडिट पे है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर। हाँ हाँ, देन वेजेस पेड है तो वेजेस टू कैश एंड बैंक, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है कुछ पता नहीं, आपको उसके लिए कंसर्न भी रखना नहीं है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड टू सचिन, तो सचिन का मतलब ये होता है ये क्रेडिट पे है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सचिन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना पेड, पेड लिखा है बेटा, तो आपको सचिन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश एंड बैंक, समझा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश एंड बैंक, वहाँ पे सिर्फ आपको क्रेडिटर का नाम दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। पेड है तो मतलब क्या है, आपको कैश एंड बैंक ही लिखना, इतना उस पे मत जाओ। क्रेडिट रहता तो अपन सचिन का नाम लिखते ना। ओके, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन है तो WIP टू वर्क इन वेजेस, प्रोग्रेस हाँ अकाउंट डेबिट टू ओके। Factory overhead absorption rate is 150% of wages charged to work in progress. Wages charged to work in progress कहीं पे दिया है क्या? Wages charged to work in progress ऊपर ही दिया है ना, wages charged to production वही तो दिया है। अच्छा, 60 लाख का 150% निकालो बेटा, चलो। सर 60,000 का 150% ना, यस, तो होगा 90,000 सर। ओके। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, वर्ड में डालता हूँ, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे और समझेंगे, बस इसमें कुछ है नहीं। ओके, क्या हो गया इसको? अभी तो क्वेश्चन का पोस्टर बन गया। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, हो गया सही। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, दिस इज वन थिंग। एंड अमाउंट जो है इसका नहीं दिया है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यू आर गिवन दैट 150% ऑफ वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन इज 60,000, ठीक है। I replaced it. Wages charged to production is 60,000. वर्ड के साथ में मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। And 60,000 into 150%, कितना है? 90,000। 90,000, okay, equals to 90,000. 90,000, ठीक है। सो अब मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, बन गया क्वेश्चन आपका। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 90,000। मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, एंट्री क्या होगी? Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस करेक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, डन। 90,000 90,000। एनी डिफिकल्टी? समझ गया, थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, तो एकदम क्लियर लिख दिया है, इससे पहले से फिनिश गुड्स लिखा होता था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, अच्छा ये हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड एंड सोल्ड, ये कौन सी एंट्री बेटा?
जा, आवाज ही नहीं आ रही। सर सोल्ड ये फिनिश की एंट्री है, सोल्ड की एंट्री इधर आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स और डिफिकल्ट है। इट वाज देयर इन नॉन इंटीग्रेटेड आल्सो, नॉन इंटीग्रेटेड में भी था। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ ताकि मैं अटेंडेंस लिंक भेज दूँ। Okay, attendance link is there in the chat box and let me know. बाकी की चीजें सिंपल है। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर से रिसीव हुआ है। एंड हु इज योर डेटर? डेटर का नाम लिखा है क्या? नहीं, ये तो ठीक है। डेटर में ये लिखा, नाम नहीं है तो डेटर ही लिखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पेड नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग तो लिखो आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, पेड मत लिखो। फिर इसको कैसे एंट्री पास करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सर स्क्रीन सॉरी, ओके, ये सब निकाल देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, थोड़ा जूम करेंगे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है पेड के लिए? कैश इन बैंक। बोलो, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो क्या लिखूं? कैश की जगह पे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में फर्क क्या है? ऑफिस सैलरी में और आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी में क्या फर्क है पता है? हाँ सर। ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी ये लाइबिलिटी है। आप सैलरी में ऐड करके क्या करते थे? इसको लाइबिलिटी साइड में शो करते थे। सो मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट कर दिया तो वो एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज योर लाइबिलिटी। ओके, एनीथिंग एल्स? इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? अटेंडेंस फिल कर दिया? यस सर। अटेंडेंस के नाम पे हाँ बोला, इससे पहले कितने भी क्वेश्चन पूछे उसके लिए कोई आंसर। मैंने जवाब दिया सर। हाँ, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा आजकल?